درون ذات ہیں شیشوں کی بستیاں آباد، بہت سنبھال کے اعراض یہ نگر رکھنا۔ میں سمرین، سب مجھے دیکھ کر ایک ہی بات بولتے ہیں کہ شاید میں اپنا گھر خود اجاڑ رہی ہوں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنا گھر برباد کر رہی ہوں، لیکن کوئی عورت کب اپنا گھر برباد کرتی ہے؟ کوئی صدیوں کی محنت کے بعد ایک حسین عمارت بناتا ہے جو کہ گھر ہوتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ گھر گر گیا ہے اور میرا وجود بھی۔ میں سب کی آنکھوں میں ہزاروں چھپے سوالوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھپتی پھر رہی ہوں۔ میری بھابھیاں مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتی ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا پڑھا لکھا، اتنا دولت مند شخص، اتنا چاہنے والا، کس چیز کی کمی ہے سمرین کو؟ ایسا شائستہ، مہذب، خامد، پیارے پیارے بچے، سب کچھ چھوڑ دیا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا۔ اماں ٹھنڈی سانس بھرتی ہیں، بس چپ چاپ چھوڑ کر چلی آئی۔ کوئی بات تو ہوگی؟ بھابھی اور متجسس نظریں میرے وجود کے آر پار گاڑ دیں۔ کیا بات ہوگی بھائی؟ کیسی نفس درست رہتی ہے، ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے۔ ہاں، میرا جسم تو ثابت و سالم ہے، ٹکڑے ٹکڑے تو روح ہوئی ہے، میرا دل ہوا ہے، اس نے سارے وار تو میرے دل اور روح پر کیے ہیں۔ میں سوچتی ہوں، اور بڑی بھابھی کبھی کبھی مجھے سمجھاتی ہیں۔ دراصل بڑی بھابھی کو مجھ سے کچھ ہمدردی ہے کہ جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں تو میں صرف 7-8 سال کی بچی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں سمو، لیکن تمہاری طرح کوئی گھر برباد نہیں کرتا۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ آج تم اپنی انا کے ذمے چلی آئی ہو چندہ، لیکن زندگی مشکل ہو جائے گی، زندہ رہنا عذاب ہو جائے گا تمہارا۔ زندہ رہنا مشکل ہوتا اگر میں زندہ ہوتی، مگر میں زندہ کب رہی؟ میں تو اسی دن اسی وقت مر گئی تھی، اسی لمحے مر گئی تھی۔ تو نے اپنے دل کو اتنا پتھر کیوں کر لیا ہے سمو؟ عارف بہت پریشان ہے، ایک بار اس کی بات تو سن لو، اتنی پتھر مت بنو۔ پتھر نہیں، میرا دل تو بہت نازک تھا، پھولوں کی پتی سے کٹ جانے والا۔ کیا بچے بھی تجھے یاد نہیں آتے؟ بچے؟ میرے دل سے خون رسنے لگا۔ میں نے بھولی ہی کب ہوں جو مجھے یاد آتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ، ہر پل میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، مگر میں نے خود چھوڑ آئی ہوں اس لیے کہ عارف بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے اور انہیں بچوں سے بہت پیار ہے۔ اور تم رہ سکتی ہو بچوں کے بغیر؟ کوئی میرے اندر سرگوشی کرتا ہے۔ مگر مجھے تو اب ان کے بغیر رہنا ہی ہے، تب تک جب تک جسم کے اندر سانس کی ڈوری اٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا ہے، لیکن اس کے بچے اس سے الگ نہیں کر سکتی ہو تم، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اسے ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھ سکوں۔ میں بہت بزدل ہوں، بھابھی کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی۔ تم پاگل ہو گئے سمو، پھر صبح سے شام تک ڈھیروں ٹیلی فون کالز، عارف کے دوستوں کی، میری سہیلیوں کی، ہمارے ملنے والوں کی۔ عارف کے دوست کہتے ہیں، بھابھی یہ سب کیا ہے؟ پلیز بھابھی اب غصہ تھوک دیں، گھر آ جائیں۔ بھابھی عارف بہت پریشان ہے، یہ اور ایسی بہت سی باتیں۔ پھر میری سہیلیوں کی سازش، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے سمرین؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ایسا محبت کرنے والا، چاہنے والا خاندان، کیوں؟ آخر کیوں؟ اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تم ہی کہو عارف علی حیدر، کہ میں کیا کہوں؟ وہ سب بھی تو صحیح کہتے ہیں، اور میں نے اس سے کب انکار کیا ہے؟ تم نے واقعی مجھے بے حد بے حساب چاہا ہے، بہت دیا ہے، محبتیں، آسائشیں، سہولتیں، سب کچھ۔ کیا کچھ نہیں میرے پاس؟ خوبصورت گھر، پیارے پیارے بچے، اور تمہاری لافانی محبت۔ کس چیز کی کمی تھی مجھے؟ پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ عارف علی حیدر، میری ذات، میری خودداری اور میری انا کو کچل دیا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری چاہتیں، محبتیں ریاکاری تھیں، فریب تھیں، دھوکہ تھیں۔ حالانکہ میں جانتی ہوں عارف علی ایسا نہیں تھا۔ تمہاری چاہت، تمہاری محبت اپنی صداقت میں اٹل ہے، تمہاری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تم اب بھی مجھے اسی سچائی سے چاہتے ہو، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ تمہارے دن، تمہاری راتیں کتنی پریشان ہوں گی، تم کس طرح ٹوٹتے ہوں گے، کس طرح بکھرتے ہوں گے۔ اسی لیے تو میں بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ آئی ہوں، تاکہ وہ تمہیں ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچائے رکھیں۔ جب سے میں آئی ہوں تب سے لے کر اب تک جانے تمہارے کتنے فون آ چکے ہیں۔
तुम ने बारी बारी इल्तिजा करी सबसे कि सिर्फ एक बार मैं तुम्हारी बात सुन लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं पिघलता, नरम नहीं होता। हालांकि अस्मा ने फ़ोन पर मुझसे कहा था वो बहुत जज्बाती है समूह, बहुत हसास है, मुझे डर है कि कहीं को गलत कदम ना उठा ले। मगर मुझे यकीन था आरिफ अली कि मानी और उम्मी तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसीलिए तो मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ कर आई हूँ। हालांकि सारा दिन मानी की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं चौंक कर इधर उधर देखती हूँ। कभी यूँ महसूस होता है जैसे रोमी रो रहा है, और मैं आधी आधी रात तक कमरे में टहलती रहती हूँ। मेरी नींदें मुझसे रूठ गई हैं। तुम इस माँ के दिल का अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, ये खुद अपने बच्चे छोड़ कर आई हो। मगर 10 साल अज़दवाजी ज़िंदगी में तुमने मुझे जो कुछ दिया, इन सब का सिला मैंने मानी और उम्मी की सूरत में तुम्हें लौटा दिया है। मैं तुम्हारे एहसानों का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहती, इसीलिए तो मैंने खुद अपना दामन खाली कर लिया है। तुम तो बहुत हसास, बहुत जज्बाती हो आरिफ अली हैदर, लेकिन कितनी अजीब बात है कि इतने हसास हो के भी तुम ये नहीं जान सके कि तुम किस किस अंदाज में मेरे शीशे पे ज़रबे लगाते रहे हो। यह आखिरी ज़रब तो इतनी शदीद थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मिट गया। फ़ोन की घंटी बज रही है और मैं साकित नज़रों से देख रही हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारा फ़ोन है, आबिद भाई का, अस्मा का, नवीद का, या फिर मम्मी का। ये सब जो मेरे और तुम्हारे हमदर्द हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे घर को उजड़ने और बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। लेकिन जो बस्तियाँ उजड़ जाएं वो कैसे बसाई जा सकती हैं? जो शीशे टूट जाएं वो कैसे जुड़ सकते हैं? आरिफ अली। घंटी बज रही है। अम्मा ने आकर रिसीवर उठा लिया। आरिफ है। वो ज़ख्मी नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन मैं साकित बैठी रही। अम्मा जानती हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी, फिर भी पूरी उम्मीद नज़रों से मुझे देख रही हैं। एक बार फिर सोच ले समूह, अब सोचने के लिए रह क्या गया है? कुछ भी सलामत नहीं रहा। मेरे अंदर कुछ टूट गया है, रेज़ा रेज़ा हो गया। अब कैसे जुड़ सकता है? भला किरचियाँ भी कभी जुड़ती हैं अम्मा? समूह, एक बार मेरी जान की बात तो सुन ले। अम्मा ने रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। समूह प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मुझे मेरा कसूर तो बता दो। हाँ, ये तुम्हारी आवाज़ है, आप ये आवाज़ जिसे सुनकर अब 2 बच्चों की माँ होकर भी मेरा दिल धड़क उठता है। जब कभी तुम किसी काम के लिए ऑफिस से फ़ोन करते तो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल धड़कता, तेज़ी से धड़कता, और रुखसार यूँ तप उठते जैसे मैं कोई नई दुल्हन हूँ। और मेरी शरियानों में दौड़ता खून यकदम गर्म हो जाता, और तुम जितनी देर बातें करते रहते दिल धड़कता रहता, धड़कनें डूबती और उभरती रहती। मगर आज तुम्हारी आवाज़ सुनकर एक ऐसी खून सर्द ठंडी सी लहर वजूद में दौड़ गई, जैसे मौत की खुनकी हौले हौले मेरी शरियानों में उतर रही हो। समूह, तुम रो से दिए, एक बार मुझे मेरा कसूर तो बता दो प्लीज़, कि तुम हमें किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? जुर्म, कसूर। मैंने रिसीवर वापस रख दिया। हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आरिफ हैदर। फिर फ़ायदा भी क्या है बात करने का? मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम्हारा क्या कसूर है, तुमने क्या जुर्म किया है? सुनो आप, तुमने मेरी रूह को कत्ल किया, मुझे मार डाला। मगर कैसे? ये अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम हंस पड़ोगे। अरे समूह, इतनी मामूली बात पर रो रही हो? ये तो आम सी बातें हैं, ये बाय द वे दे दी होंगी। मगर मामूली बातें जो बाय द वे की जाती हैं ना, वो बाज़ दफ़ा रूह को ज़ख्मी कर देती हैं, बंदा ज़िंदा भी नहीं रहता। मगर मेरे लिए मामूली बात नहीं है। किसी एक आदमी का मर जाना, उसका कत्ल हो जाना मामूली बात नहीं है आपको। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती, उनकी वजाहत नहीं हो सकती, इन्हें मैं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मगर तुम इन्हें मेरे बताने पर भी महसूस नहीं कर सकोगे। मर्द हो ना, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बतों, अपनी वफ़ाओं पर फ़ख्र है। जो भी मिलता है यही कहता है कि आरिफ ने तुम्हें इतना चाहा, इतनी मोहब्बत दी। मोहब्बत तो मैंने भी तुमसे की थी आरिफ अली हैदर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बावफ़ा हसास औरत अपने शौहर से कर सकती है। मैंने भी ना तुमसे पहले ना शादी के बाद किसी चेहरे पर गलत निगाह डाली। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत मुझसे ज़्यादा थी? नहीं आपको, ये झूठ है। तुम्हारी मोहब्बत में वो पुख्तगी नहीं थी जो मेरी मोहब्बत में थी। मोहब्बत तो आदमी के दिल को वुसअत अता फरमाती है, फ़राग करती है इसे। मगर ये तुम्हारी मोहब्बत कैसी थी जिसने तुम्हें तंग नज़र बना दिया? जबकि मेरी मोहब्बत ने तो मेरे दिल को वसी कर दिया था। मैं तो तुम्हारी इस पुरानी दोस्त बीना सैद अली ख़ान से भी बड़े खुले दिल और वसी ज़हन के साथ मिलती थी, जिसके बारे में मिसेस असफंदियार ने ना जाने कितनी बातें मुझे बताई थी। मगर मुझे तो तुम पर अंधा एतमाद था आफू, इसलिए तो मैंने मिसेस असफंदियार की बातों पर
ध्यान नहीं दिया था। हालांकि शादी से पहले मैंने तुम्हें देखा तक न था। अस्मा की बर्थडे पार्टी में अगरचे तुम भी थे, तुमने मुझसे कोई बात भी की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था। जब पहली बार अस्मा और मम्मी तुम्हारे लिए हमारे घर आई थी तो अस्मा ने मुझे याद दिलाया था कि मैं उसकी बर्थडे पर तुमसे मिल चुकी हूँ, लेकिन चूँकि वहाँ और भी लड़के थे और मैंने खसूसियत से किसी की तरफ नहीं देखा था, इसलिए अस्मा के याद कराने के बावजूद कि तुमने मुझसे कोई बात की थी, मुझे याद ना आ सका कि तुम कैसे थे, यानी तुम्हारी शक्ल और सूरत कैसी थी। दरअसल उस रोज़ तो मैं ज़हनी तौर पे इस कदर अपसेट थी, अस्मा के बहुत मजबूर करने पर आ तो गई थी, लेकिन मुझे कतई अंदाज़ा न था कि वहाँ मिक्स गैदरिंग होगी। दरअसल हमारे घरों में ऐसा माहौल न था कि मैं बेतकल्लुफ़ी से ऐसी पार्टियों में शिरकत करती, और खुद ज़ाती तौर पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैं जल्दी लौट आई थी। मेरे फ़ोन करने पर रिजवान भाई आकर मुझे ले गए थे। अस्मा और मम्मी कई बार आईं, मगर अब्बू, बड़े अब्बू लोगों से रिश्ते नाते करने के कायल न थे। मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही थी कि रिश्ता बराबर वालों में ही होना चाहिए, जबकि हमारे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तुम एक मिल ऑनर के बेटे और मेरे बाप की कपड़े की एक दुकान ही थी। अब्बू ने अस्मा और मम्मी को ये कह के टाल दिया कि जब तक वो लड़के को देखेंगे नहीं कैसे हाँ कर सकते हैं, और यूँ वक्ती तौर पर बात ख़त्म हो गई थी। यूनिवर्सिटी में एक बार अस्मा ने तुम्हारी तस्वीरें मुझे दिखाई थीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक बेबुनियाद बात पर महल तामीर नहीं करना चाहती थी। और फिर यूँ भी घर में रिश्ते मौजूद थे। मेरे चचाजाद भाई जुनेद मुआवडा में एक्सीडेंट बन गए थे, और मेरे मामूजाद भाई आजिब बिजनेस करते थे। चचा और मामू दोनों ही हमारे घर रिश्ता करने के ख्वाह थे। जब अम्मी ने मेरी राय पूछी तो मैंने फ़ैसला उनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। यूँ भी मैं शादी से पहले मोहब्बत की कायल नहीं थी। मेरे लिए तो दोनों एक जैसे थे। मेरे माँ बाप जिसके हाथ में मेरा हाथ थमाते, वही मेरी मोहब्बतों का हकदार था। लेकिन शायद ऊपर आसमानों पर मेरा और तुम्हारा बंधन तय पा चुका था कि अब्बू, जो चचा और मामू से बात करने ही वाले थे, कि वो खुद ही फैसला करें। उन्होंने तो दोनों ही अजीज़ हैं अचानक बीमार पड़ गए, और जब वो हॉस्पिटल से आए तो रिजवान भाई का एक्सीडेंट हो गया। टांग के ज़ख्म ख़राब हुए और फिर साल भर इसी परेशानी में कट गया। यूँ कोई ना कोई बहाना बनता रहा, हत्ता कि एक बार फिर अस्मा और मम्मी वही दरख्वास्त लेकर आ गईं। अजीब बात यह है कि सभी इस रिश्ते की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता तय पा गया। बकौल तुम्हारे, शायद खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली थी, या फिर मम्मी और अस्मा की पुरखुलूस कोशिशों ने अम्मा और अब्बा के दिल को नरम कर दिया था। खुद अस्मा ने जब मुझे बताया कि तुम अमेरिका जैसे मुल्क में भी मुझे नहीं भूले, तो मुझे खुशगवार हैरत हुई थी कि तुम, जिसने मुझे सिर्फ एक बार एक नज़र देखा, अभी तक मुझे याद रखे हुए हो। मुझे तुम्हारे जज्बे की पुख्तगी और गहराई पर हैरत हुई थी, और इस एहसास से कि तुम जो एक मिल ऑनर के बेटे हो, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को नज़रअंदाज करके मुझसे, एक गरीब मुतवस्सत तबके की लड़की से शादी करना चाहते हो। पहली बार मेरा दिल एक अजनबी के लिए अजीब अंदाज से धड़का। और जब अम्मी ने मेरी राय पूछी तो मैं इनकार नहीं कर सकी कि शायद अंदर ही अंदर तुम्हें देखे बगैर तुमसे मुतासिर हो गई थी, और यूँ बकौल तुमने एक तवील और कठिन इंतज़ार के बाद मुझे पा लिया। इस रिश्ते पे हमारे सब रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया, हत्ता कि खुद जुनेद भाई और आज़िब भाई ने भी तुम्हारी तारीफ़ की थी और कहा था कि वाकई समरीन के लिए आरिफ बहुत मुनासिब है। और जुनेद भाई तो अपनी हंसमुख तबीयत की वजह से मुझे अक्सर तुम्हारे नाम से छेड़ते थे। हमने एक ही घर में परवरिश पाई थी, और हमारे दरमियान ऐसी मोहब्बत थी जैसे सगी बहन भाइयों में होती है। चचा जान ने मुझ में और मेरे तीनों भाइयों में और अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं किया था। अब्बा जान के फ़ैसले को सराहा था। सभी मेरी खुशकिस्मती पर रश्क कर रहे थे और कहते थे कि मैं किस्मत की बड़ी धनी हूँ, 3 भाइयों की इकलौती बहन, और अभी इतने बड़े घर की बहू बनकर जा रही हूँ। मामू आते तो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहते, हाय हमारी समों के नसीब देखो, ये तो पैदा ही राज करने के लिए